नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आवासीय विद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन व धरना। कर्नाटका अपनी जीत का इंतजार कर रहा। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने पीबीकेएस के खिलाफ आईपीएल फाइनल से पहले आरसीबी का समर्थन किया। कर्नाटका के मंत्री लक्ष्मी खड़गे से मिले अटकलें तेज। मांड्या हादसा, राज्य के डीजीपी ने असुरक्षित वाहन जांच पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सीआरआईएससी आवासीय विद्यालयों के स्थायी शिक्षक कर्मचारी कई सुविधाओं से वंचित है और उन्होंने सरकार से निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की अपील की है। आवासीय शिक्षा निदेशालय का गठन, एसए विभागों का विलय, ज्योति संजीवनी का कार्यान्वयन, मृत्यु और सेवानिवृत्त लाभ का प्रावधान, मकान किराए कटौती से छूट, 10% विशेष भत्ता देना। यद्यपि सरकार से उपरोक्त मांगों को पूरा करने के लिए कई बार अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसलिए आवासीय विद्यालय कर्मचारी संघ बेंगलुरु ने बेंगलुरु के स्वतंत्रता पार्क में एक संवैधानिक धरना सत्याग्रह का आयोजन किया। चूंकि हमारी महत्वपूर्ण मांगों के बारे में कोई लिखित आदेश नहीं आया है, इसलिए केएसई और चिमटी संघ के जिला स्तर पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया गया। जिला स्तर पर संघर्ष जारी रखा जा रहा है। इस अवसर पर क्राइसे आवासीय विद्यालय प्राचार्य संघ के राज्य उपाध्यक्ष श्री शरणप्पा बिरादर, महासचिव चन्नबसवा हेगड़े, प्राचार्य संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र चटनल्ली, कलबुर्गी शाखा के उपाध्यक्ष अनिल कांबळे, संगठन सचिव श्रीमंत साप्टे, जिला इकाई के महासचिव रतनराज वाघमारे, उपाध्यक्ष मंजुनाथ मणिवाड़, संयुक्त सचिव नारायण होनाले सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ, ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದು ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ KGID ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು 24x8 ಅಂತಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ HRAಯಿಂದ ಕಡಿತ ಇದೆ. ನಾವು HRAಯಿಂದ ಕಡಿತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ 10% HRA ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಗಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಂಗೆ, ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಲೇತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರೇನೋ ಅಂದಂಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ DCRG ಇಲ್ಲ. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಡೆತ್ ಕಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂದು ಇದೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧರಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೂ ಭರವಸೆ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. SC ST ಮತ್ತು BC ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ DCRJ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸವಲತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಜೀವನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ HRA ಕಡಿತದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ನೌಕರರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಾದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ 10% ಅಲೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MOD ಇರುತ್ತೆ, SIT ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ 24/7 ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की नजर IPL ट्रॉफी पर है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने पंजाब किंग्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले टीम का समर्थन किया और कहा, मैं खुश हूं, बेंगलुरु के लड़के RCB अहमदाबाद में जीतेंगे। बहुत लंबे समय के बाद वे फाइनल में पहुंचे हैं। कर्नाटक सरकार और कर्नाटक के लोग उनकी जीत का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक से बहुत से लोग अहमदाबाद में मैच देखने जा रहे हैं। आइए हम उम्मीद करें और प्रार्थना करें कि वे जीते और वापस आए। I am happy in Ahmedabad. Bangalore boys RCB will win. After a very long time, they have come for the finals. They have done their best on behalf of government of Karnataka and the people of Karnataka. We all are waiting for their victory. I was told lot of viewers from Karnataka is going to Ahmedabad to visit. I wish them and the entire team of that they success. They should win and they should come back. Let us hope so. Let us pray for them. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी बालकर ने रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ अपने विभाग के संबंधित मुद्दों, विशेषकर गृहलक्ष्मी गारंटी पर चर्चा की। सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर वरिष्ठ पार्टी नेता से मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया, खड़गे से मुलाकात में कुछ खास नहीं है, यह एक शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि नेताओं का राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष से मिलना और उनका आशीर्वाद लेना सामान्य बात है, लेकिन उनकी यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें DCM DK शिवकुमार का वफादार माना जाता है। उन्होंने कहा, मैंने खड़गे के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं उनसे कई दिनों बाद मिली। पिछली बार जब मैं दिल्ली गई थी तब भी मुझे खड़गे साहब नहीं मिले थे। हमें उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे विभाग और गारंटी योजनाओं पर चर्चा हुई।
मांड्या में यातायात जांच के दौरान एक बच्चे की दुखद मौत और जनता के आक्रोश के मद्देनजर कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और महानिदेशक डीजीपी आईजीपी डॉक्टर एमए सलीम ने राज्य भर में यातायात प्रवर्तन प्रथाओं में सुधार के उद्देश्य से एक कड़ा परिपत्र जारी किया। सोमवार को जारी किए गए इस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से वाहनों की जांच, अचानक सड़क पर नाकेबंदी, सड़क निरीक्षण के दौरान जबरन वाहन की चाबियां निकालने की प्रथा पर रोक लगाई गई। इसमें यातायात पुलिस को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सभी प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश है। पुलिस को केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए वाहन को रोकने की अनुमति नहीं है जब तक कोई स्पष्ट यातायात उल्लंघन न हो। केवल उचित कारणों से ही रोके। वाहनों की जांच केवल तभी की जानी चाहिए जब उनको स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। ऐसी जांच के दौरान राजमार्गों पर बैरिकेडिंग से बचना चाहिए। मुख्य सड़कों पर वाहनों को अचानक नहीं रोकना चाहिए। अधिकारियों को वाहनों का पीछा करने या उनकी चाबियां जब्त करते से मना किया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक भाषणों पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद की बड़ाई करने के बजाय दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करने और चुनाव प्रचार से खुद को अलग रखने का आग्रह किया। खड़गे ने बेंगलुरु में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, मुझे मोदी के सभी बयानों पर प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं, लेकिन मेरा उनसे इस नाबद अनुरोध है कि सत्ता में बैठे लोगों को कभी कभी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। खड़गे ने प्रधानमंत्री के हालिया सार्वजनिक बयानों और राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया। मोदी को अस्थायी रूप से चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए। मोदी को चुनाव से खुद को अलग रखना चाहिए और देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश में जो कुछ भी हुआ है उसे समझना चाहिए और बोलना चाहिए। मैं बिना किसी राजनीतिक मतभेद के कह रहा हूं कि मोदी को खुद पर गर्व करने के बजाय दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनके अलावा किसी के ऐसा नहीं किया। हमारा पूरा समर्थन सशस्त्र बलों के साथ है। बटवाल ग्रामीण पुलिस ने आरएसएस नेता डॉक्टर कल्लड़का प्रभाकर भट्ट के खिलाफ समाज में अशांति फैलाने के उद्देश्य से कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि प्रभाकर भट्ट ने बटवाल तालुके के कवल पदारू गांव में माधव पैलेस कल्याण मंडप में आयोजित शोक सभा को दौरान 500 लोगों की सभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया, जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी पैदा हो सकती है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में एमएसएआई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार एमएसएमई के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने पर केंद्रित केएएसएसआई, एफकेसीसीआई, पीन्य इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम एमएसएमई कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए मंत्री पाटिल ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र कर्नाटक के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि। कर्नाटक का विजन स्पष्ट है। हमारे एमएसएमई द्वारा संचालित 2025 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना हमारा उद्देश्य। अधिक समावेशी, टिकाऊ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक भविष्य का निर्माण करना है। कई दिनों तक लगातार बारिश और उदास आसमान के बाद बेंगलुरु में मौसम में थोड़ी राहत मिली। हालांकि यह राहत थोड़े समय के लिए रहने की संभावना है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मध्य सप्ताह तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। 4 जून से शहर में धीरे धीरे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, जिसकी शुरुआत बुधवार को हल्की बारिश से होगी। उसके बाद 5 और 6 जून को व्यापक वर्षा होगी। आईएमडी ने कहा, यह बेंगलुरु के लिए एक और बारिश की शुरुआत हो सकती है। बेंगलुरु स्थित आईएमडी के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बेंगलुरु शहरी का और ग्रामीण दोनों जिलों के लिए मौसम का पूर्वानुमान 3 जून तक अधिकतर शुष्क और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के संकेत देता है। सप्ताह के मध्य में स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है तथा 4, 5, 6 जून को आमतौर पर बदलाव छाए रहने के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आवासीय विद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन व धरना। कर्नाटक अपनी जीत का इंतजार कर रहा। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने पीबीकेएस के खिलाफ आईपीएल फाइनल से पहले आरसीबी का समर्थन किया।
कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी खड़गे से मिले अटकलें तेज। मांड्या हादसा, राज्य के डीजीपी ने असुरक्षित वाहन जांच पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।